here we will discuss the example related to prime element as well as irreducible elements. Now the statement of this question is, if z square root of minus 5 that is defined in this way, then show that square root of minus 5 which is a prime element and 3 is irreducible element but not a prime element. So first part is to prove that square root of minus 5 which is a prime element. So which is a prime element. Now to prove that square root of minus 5, it should be non-zero and non-unit. As we know that the unit of this z square root of minus 5 are minus 1 and plus 1. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨੌਨ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨੌਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਆ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨੌਨ ਯੂਨਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ suppose square root of minus 5 it divides product of two element of the given set. So this is c plus d square root of minus 5. ठीक है जी। सो अगर मैं प्रूव करदा कि either it divides first element or second element then it is a prime element। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ देयर एग्जिस्ट x plus y square root of minus 5 belongs to z square root of minus 5 such that this value can be written as a plus b square root of minus 5 c plus d square root of minus 5 which is equal to square root of minus 5 into x plus square root of minus 5 into y। ठीक है जी। सो डिवीज़न ਦੀ प्रॉपर्टी ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਆਇਓਟਾ, this term, so this term it involves iota. Now change iota into minus iota, so we get the second equation, a minus b square root of minus 5 c minus d square root of minus 5 which is equal to minus time square root of minus 5 x plus square root of minus 5 into y. So this is equation number 2. Now multiply both these equation, यानी कि equation number 1 ਤੇ equation number 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ multiply ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ multiply ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ a square plus 5b square c square plus 5d square and this is equal to minus iota, so this is plus,
so which is 5 into x square plus y square. So we get this values. If we get this value on multiplication of equation number 1 and 2, so the right hand side is divisible by 5. So in that case left hand side is also divisible by 5. So it means this 5 divide a square plus 5b square into c square plus 5d square. So where a, b, c, d, these are integer, and since 5 is prime number, so by definition of prime number in number theorem, 5 divides a square plus 5b square, or 5 divide c square plus 5d square. So this values. Now if it means 5 divide this values, also it divides its multiplications. So it implies 5 divide a square c square plus 5b square c square plus 5a square d square and plus 25 b square and d square. Now in this equation, so this term is divided by 5 because it is a multiple of 5, and this total term is also divided by 5. So it means, so in this case it implies 5 divide a square into c square. So since 5 is prime number, so either 5 divide a square or 5 divide c square. So in similar way 5 divide a or 5 divide c, because it is a prime number. So we have two possibilities, either 5 divide a or 5 divide c. So in first case, if 5 divide a, so this one, it means this 5 can be written as minus 5 square root into minus 5 square root into minus 5 square root, this values. So it implies square root of minus 5, it divides 5. So here remember that if it divides 5, so it means 5 divides a, 5 divides a, so it means this square root of minus 5 by transitive divides a. Also we know that minus 5 square root divide square root of minus 5 into b. From this it implies square root of 5, it divides a plus square root of minus 5 into b. So on same line of action, if we choose 5 divide c, same line of action, then it implies square root of 5 divide c plus square root of minus 5 into d. So this number either divide this values or divide this values. So it means it is a prime number. Either it divides a plus square root of b, or it divides c plus square root of d. So it means
minus 5 square root, either it divides a plus b square root of minus 5, or this number divide c plus d square root of minus 5. So it means this square root of minus 5, it is a prime element of z square root of minus 5. So this is my first part. So what is our first part? So first part is this square root of minus 5 is a prime element. Now second part, 3 is a irreducible element. Now to prove this, so first remember that the units are only plus 1 and minus 1. So 3 is non-zero and non-unit, non-zero and non-unit. So this is a non-unit of the given set. So given ring, if it is a non-unit and non-zero, now what is the second property to prove our result? It is a irreducible element. So to prove it is a irreducible, now suppose this 3 can be written as a plus b square root of minus 5, and similarly c plus d square root of minus 5. All these are element of z square root of minus 5. Now if I write in this way, so in the same way just change iota to minus iota. So what we get? We get this equation 3. So what is this? It is a minus b square root of minus 5 c minus d square root of minus 5. Now multiply these two equations. So from the left hand side 9, here we get a square plus 5b square into c square plus 5d square. So right hand side where all these element belongs to z. Now see the right hand side very carefully. Since this number is positive, this number is also positive because it is positive numbers. Now this number 9 can be factorized in 3 ways. So first is 3 into 3, second is 1 into 3, and third is 9 into 1. So these we have 3 possibilities. So if we have 3 possibility, so this has 3 possibility, 1, 3 and 9. So we know that this first element has 3 possibility, second element again has 3 possibility. So I take a square plus b square has 3 possibilities. If a square plus 5b square, it has 3 possibility. Either it is 1 or 3 or 9. Now if I write first a square plus 5b square is equal to 1. So what is its integral solution? Its integral solution is a is equal to 1 and b is equal to 0. Even a is equal to plus minus 1, a is equal to plus minus 1 and b is equal to 0. So what it means? It means a plus b square root of minus 5, which is a plus minus 1, so which is a unit.
it means in that case this a plus b under root minus 5 is a unit. Now second case, if I take, this is first case, in that case this is unit. In the second case, a square plus 5b square, which is equal to 3. This case, a square plus 5b square equal to 3. Now check that it has no integral solution. No integral solutions. So it has no integral solution. If it has no integral solution, so after that, if third case, a square plus 5b square is equal to 9, so it implies c square plus d square equal to 1, then it implies by this way. Similarly, in this way, what we get, c plus d square root of minus 5, which is equal to plus minus 1. So it is again unit. So what we get either this is a unit or this is a unit. If either this or that is a unit, then 3 is a irreducible element in this. So it implies 3 is irreducible element of z square root of minus 5. तो इस ढंग नाल असी इरोड्यूसिबल एलीमेंट प्रूव कर सकते हैं। हुण अगे चलिए, अगे इस क्वेश्चन च पूछा गया है कि 3 जिहड़ा इरोड्यूसिबल एलीमेंट है बट इट इज़ नॉट ए प्राइम। तो ये प्राइम एलीमेंट नहीं है। अगर प्राइम एलीमेंट नहीं है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं अगर एक एलीमेंट लिया दिस माइनस 5 इंटू 2 माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 5 और इन्हां दोनों का प्रोडक्ट किया तो दिस इज़ ए 4 प्लस 5 विच इज़ ए 9. सो आई राइट इट एज इक्वेशन नंबर ए. नाउ फ्रॉम दिस 3 डिवाइड 9, so it implies 3 divide 2 plus square root of minus 5, 2 minus square root of minus 5, but 3 does not divide 2 plus square root of minus 5 and 3 does not divide 2 minus square root of minus 5. So it means 3 is not a irreducible, not a prime element. So 3 is irreducible element, but it is not a prime element. So remember this example. Sometime question is asked in this way, कि give an example in which any element is irreducible but not a prime number. After that we will discuss the next example, which is a Gaussian integers. Now in the Gaussian integers, so what is zi? So this is a set of Gaussian integer, the ring of Gaussian integer. So this is a plus iota b, ab belongs to z. So what is this? It is a ring of Gaussian integers. Gaussian integers. So that is given part. So what is my questions? So my question is, show that 1 plus iota
is an irreducible elements of Gaussian integer। सो मेरा क्वेश्चन ये आ कि 1 प्लस आयोटे नूं मैं इररिड्यूसिबल एलीमेंट प्रूव करना। सो सब तो पहला तो साडे कोल पॉइंट आ गया कि इहदे विच यूनिट किहड़े-किहड़े हुंदे आ। सो असीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गॉसियन इंटीजर दे विच जिहड़े यूनिट है वो साडे कोल 1 प्लस एक हो गया 1 हो गया, एक हो गया -1 हो गया, एक हो गया प्लस आयोटा, एक हो गया माइनस आयोटा। सो साडे कोल 4 यूनिट इहदे हो गए +-1 ते +- आयोटा। सो इट मीनस जे साडे कोल इहदे 4 यूनिट्स आ, सो वन थिंग इज़ क्लीयर कि 1 प्लस आयोटा साडे कोल नॉन यूनिट हो गया। सो क्लीयरली 1 प्लस आयोटा is non-zero and non-unit। तो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सपोज 1 प्लस आयोटा, दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D। ठीक है जी। अगला स्टेप चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा। सो दिस इज A माइनस आयोटा B C माइनस आयोटा D। दोनों नू मल्टीप्लाई कर दिए 1 1 2 विच इज़ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। साढ़े को दिस वैल्यूज़ आ गया। अगर दिस वैल्यूज़ आ गया और राइट हैंड साइड नू बड़े ध्यान नाल देखिए, सो दिस नंबर इज़ पॉजिटिव, दिस नंबर इज़ पॉजिटिव और A B C D Z नू बिलोंग करदा क्योंकि ये इंटीजर। अगर पॉजिटिव है तो साढ़े कोल 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ਜਾਂ ਤਾਂ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 होएगा ਜਾਂ 2 होएगा। ठीक है जी। सो मैं पहले केस दे नाल चलदा। अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 है तो ਇਹਦੇ इंटैग्रल सोल्यूशन ਲੱਭੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ A +-1 ਹੋਣਗੇ, B 0 होएगा ਜਾਂ A 0 होएगा B +-1 होएगा। ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ फाइंड आउट किया A प्लस आयोटा B +-1 है और ਇਹਦੇ ਤੋਂ फाइंड किया A प्लस आयोटा B +- आयोटा है और दोनों केस से यूनिट हो गए। तो अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 के बराबर है, सो इन दैट केस A प्लस आयोटा B इज़ यूनिट, क्योंकि गॉसियन इंटीजर दे यूनिट जिहड़े आ वो साडे कोल किहड़े-किहड़े हुंदे +-1 या +- आयोटा। तो या तो आ पॉसिबिलिटी होएगी ਜਾਂ साडे कोल आ होएगी ਜਾਂ आ भी यूनिट आ, ए भी यूनिट आ। नाउ आफ्टर दैट अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नूं असीं 2 लैने आ तो ये तो क्लीयर है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो बिल्कुल पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग C प्लस आयोटा D ਜਾਂ तो +-1 होएगा ਜਾਂ +- आयोटा होएगा और दोनों केस दे विच C प्लस आयोटा D यूनिट बन जाएगा। ठीक है। सो इट मीन्स आइदर फर्स्ट मेंबर इज़ यूनिट या फर्स्ट एलिमेंट इज़ यूनिट या सेकंड एलिमेंट इज़ यूनिट। सो इट implies
either a plus iota b or c plus iota d is unit. सो जा तो पहला एलीमेंट यूनिट आ या दूजा यूनिट आ, सो इट इंप्लाइज 1 plus iota irreducible element in Gaussian integer। ठीक है जी। सो इस ढंग दे नाल असी क्वेश्चन नू कोई भी साडे कोल टाइप आ जाए उन्होंने इस ढंग दे नाल असी करना। उस तो अगे चलिए। सो नैक्सट इज़ ए थ्योरम। तो पहला तो स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इन एन इंटेग्रल डोमेन, in an integral domain D, every integral domain D with unity। सो यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैक्टराइजेशन च यूनिट तां ही बनेगा जो यूनिटी होएगी। एवरी प्राइम एलिमेंट is irreducible। तो याद रखना कोई भी प्राइम एलीमेंट लईए ये इररिड्यूसिबल होएगा, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं। ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? 3 वाली। सो 3 नंबर ਜਿਹੜਾ इररिड्यूसिबल है पर प्राइम नहीं है। सो इन एन इंटेग्रल डोमेन with unity every prime element is a irreducible element। solutions। so first part, तो मान लो let p is prime element of D। so D बारे सानू पता ही है, कम्यूटेटिव रिंग या इंटैग्रल डोमेन विद यूनिटी। क्योंकि प्राइम एलिमेंट आ तो पहला स्टेप हो गया, पी नॉन ज़ीरो भी होएगा और पी नॉन यूनिट भी होएगा। असी इररिड्यूसिबल प्रूव करना। इररिड्यूसिबल नू प्रूव करन लई सपोज पी कैन बी रिटन एज ए बी where a b belongs to D। ठीक है जी। सो p जड़ा असी a b दे बराबर लिख लिया। तो ये तो ही सानू क्लीयर है p a b दे बराबर आ, तो p डिवाइड a b एक चीज़। दूजा p सानू किदां दा दिता? प्राइम एलीमेंट। इन्हां दोनों तो इंप्लाइज होएगा आइदर p डिवाइड a और p डिवाइड्स b। ठीक है जी। क्योंकि साढ़े कोल p a b नू डिवाइड कर गया और p प्राइम नंबर आ, तो जा तो p a नू डिवाइड करेगा जा p b नू डिवाइड करेगा। सो मेरे को 2 केसेस बन गए। सो फस्ट केस नू असी डिस्कस करिए। केस नंबर 1, इफ p डिवाइड a, तो बाय डेफिनेशन a नू मैं लिख सकदा p इंटू सम एलीमेंट ऑफ d। तो तुसी कोई भी चूज़ कर सकते, मैं k कर लिया। सो दिस इज़ फॉर सम k एलीमेंट बिलोंग्स टू d। जरूरी नहीं k करना, जो तुहानू ठीक लगे असी उन्हें चूज़ कर सकते हैं। p की वैल्यू सानू पता a b दे बराबर, तो इस वैल्यू ने इहदे च सबस्टिट्यूट कर दईए। जदों सबस्टिट्यूट किया p उदां दा उदां ही, और p की वैल्यू a b दे बराबर आ। सो a की वैल्यू पुट की p k
into B. So this is equal to P into 1 minus KB. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ D ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਆ। ਜੇ D ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂਬਰ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆ ਮੈਂਬਰ 0 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ P ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1 ਮਾਈਨਸ KB equal to 0. It implies KB equal to 1. It implies B is unit. तो असी प्रूव करता कि अगर P A नू डिवाइड करता तो साडे कोल B यूनिट आ गया। बिल्कुल दूजे केस च अगर P B नू डिवाइड करता तो साडे कोल A यूनिट आ जाएगा। सो सिमिलरली if P divide B then it implies A is unit. A is unit. सो ਜਾਂ ਤਾਂ A यूनिट हो गया ਜਾਂ B यूनिट हो गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, irreducible एलिमेंट आ गया इन इंटैग्रल डोमेन। एलिमेंट इन इंटैग्रल डोमेन। सो एक चीज़ याद रखना कि अगर असी इंटैग्रल डोमेन विद यूनिटी की गल कर रहे हैं तो उस इंटैग्रल डोमेन विद यूनिटी विच हरेक प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल होएगा। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जिहड़ा साडे कोल 3 है वो Z स्केयर रूट ऑफ -3 दे विच -5 दे विच इररिड्यूसिबल एलीमेंट है, बट इट इज़ नॉट ए प्राइम एलीमेंट। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही उस थ्योरम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऐड कर दांगे कि बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। लो जी, उस तो अगली एग्जाम्पल असी करन जा रहे हैं, वो भी ਇਹਦੀ मदद ही लैनी है। असी प्रूव करना शो दैट Z generated by 6 is not a integral domain। इंटैग्रल डोमेन, ठीक है जी। सो असी प्रूव करना इंटैग्रल डोमेन नहीं है, और ਇਹਦੇ ਲਈ भी ਆਪਾਂ पिछली थ्योरम की मदद लवांगे। अगर ये इंटैग्रल डोमेन हुंदी, सो एक गल पहला समझो, अगर ये इंटैग्रल डोमेन हुंदा तो ये अंदर दा हरेक प्राइम एलीमेंट इररिड्यूसिबल होएगा। तो अगर मैं एक ऐसा एलीमेंट लभ ला जिहड़ा प्राइम आइडियल होवे बट इररिड्यूसिबल ना होवे तो मेरा रिजल्ट हो गया, ठीक है जी। सो उस पिछली थ्योरम की मदद दे नाल मान लो सपोज Z by generated by 6 is an इंटैग्रल डोमेन मान लो ये इंटैग्रल डोमेन है। तो हरेक प्राइम एलीमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो मैं Z जनरेटेड बाय 6 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ 0 ਬਾਰ 2 ਬਾਰ 3 ਬਾਰ 4 ਬਾਰ 5 ਬਾਰ these एलिमेंट। मैं इन एलिमेंट च 2 बार चूज कर लिया, दिस 2 बार। सो लेट 2 बार डिवाइड A बार इंटू B बार। सो 2 एलिमेंट दे प्रोडक्ट नू डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2 एलिमेंट नू प्रोडक्ट नू डिवाइड कर रहे हैं, सो इट मीनस वट इट मीनस वट इज़ दिस, इट इज़ ए रिमाइंडर है ना। ये साडे कोल की है रिमाइंडर वैन
6 ਡਿਵਾਈਡ A, मतलब ये कि जदों A ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ A ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 6 ਨੂੰ B ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ AB ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ AB, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟ ਮੀਨਸ 6 ਡਿਵਾਈਡ AB ਮਾਈਨਸ 2, ਜਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ AB, ਜਾਂ AB ਮਾਈਨਸ 2। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AB ਮਾਈਨਸ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 6 ਇੰਟੂ K ਟਾਈਪ। K ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ। तो AB ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ 3K, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ। ਔਰ 2 AB ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਸੋ 2 ਡਿਵਾਈਡ A ਔਰ 2 ਡਿਵਾਈਡ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 A ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 2 B ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। So it implies 2 bar divided A bar or 2 bar divided B bar. So 2 bar is a prime element. So this is a prime element. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ irreducible ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ 2 ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 2 ਬਾਰ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 2 ਇੰਟੂ 4, ਇਹ ਵੀ 8 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 2 ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਨਿਟ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਨਾਟ ਯੂਨਿਟ। So it means 2 bar is not a irreducible element. Irreducible element. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ Z ਬਾਏ ਓਵਰ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ 6 is not a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ, is not a integral domain। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ R ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, AR ਪਲੱਸ NA ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ R ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ A ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ R ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਹੈ, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ A ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ A, ਔਰ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, RA ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, AR ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਰਿੰਗ, ਆਈਡੀਅਲ ਰਿੰਗ। if every ideal is
प्रिंसीपल। सिमिलरली अगर हरेक इंटैगरल डोमेन च हरेक इंटैगरल डोमेन विद यूनिटी च हरेक आइडियल प्रिंसीपल हो जाए तो उन्होंने असीं कहने प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। सो डेफिनेशन मैं लिख दिना, एन इंटैगरल डोमेन D with unity is called PID, means principal ideal domain. If each ideal of D is principal, अगर किसी भी इंटैगरल डोमेन का आइडियल, बल्कि इंटैगरल डोमेन विद यूनिटी दा आइडियल साडे कोल प्रिंसीपल बन जाए तो उन्होंने असीं कहने प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। इस गल नूं पहलां तां समझ लो। अगली जिहड़ी मैं थ्योरम करन जा रहा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो एग्ज़ाम दे विच बहुत बार पूछी जा चुकी है कि प्रूव दैट Z is PID, प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। सो असी प्रूव करना, सो दिस इज़ ए PID। ठीक है जी। सो सब तो पहला तां ये इंटैगरल डोमेन होनी चाहिए है, नंबर 2 तो विद यूनिटी होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होगी क्योंकि Z साडे कोल इंटैगरल डोमेन भी है विद यूनिटी भी है। और PID कदों होएगी जदों इहदा हरेक आइडियल कोई भी जर्नल लईए वो प्रिंसीपल बन जाए। तो मैं कंसिडर करदा लेट A बी नॉन ज़ीरो आइडियल ऑफ Z ये मैं कंसिडर कर लिया। सो मेरा मतलब मेरा जिहड़ा क्लेम की है, वट वी क्लेम दैट। सो साडा जिहड़ा काम है वो है कि ए प्रिंसीपल हो जाए। प्रिंसीपल मीनस ए जनरेटेड बाय सम ऑफ एलिमेंट बन जाए और ए एलिमेंट किनू बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर, सैट ऑफ इंटीजर। एन कह सकते हैं, एन तो बजाय कोई होर वर्ड यूज़ करना असी वो भी यूज़ कर सकते। सो मेरा जिहड़ा काम है वो इस चीज़ नूं प्रूव करना। क्लीयर जी। ए सानू दिता नॉन ज़ीरो, ए च की है इंटीजर क्योंकि Z इंटीजर है। ए साडे कोल है नॉन ज़ीरो, ਇਹਦਾ मतलब ए दे विच कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट जरूर होएगा। सो इट मीनस देयर एग्जिस्ट सम नॉन ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। याद रखना ए दे विच की है इंटीजर और इंटीजर पॉजिटिव भी होंदे नैगेटिव भी होंदे। सो असी पॉजिटिव नूं कंसिडर कर लीए। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी assume that A is positive, यानी पॉजिटिव इंटीजर ए च असी चूज़ कर लिया। अगर पॉजिटिव कर लिया यानी ए दे विच पॉजिटिव नंबर पाए, जे पॉजिटिव आ तो सब तो छोटा पॉजिटिव नंबर भी ये जरूर होएगा। सो उन्होंने आपां अजूम कर लिया n। सो लेट n be least positive integer such that this n belongs to a। क्योंकि a दे विच इंटीजर आ तो असी n एक ऐसा इंटीजर ले लिया जिहड़ा सब तो छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। क्योंकि ए दे विच इंटीजर पे
तो असी सब तो छोटा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। नाउ सपोज x इज सम एलिमेंट बिलोंग्स टू a, तो असी डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करन लगे। डिवीजन एल्गोरिथम की हुंदा, x नू n नाल डिवाइड किया, इत्थे आया क्यूशेंट, नीचे आया रिमाइंडर, और रिमाइंडर जा तो 0 हुंदा और जा वो n तो छोटा, जा साडे कोल n तो छोटा हुंदा, ठीक है। तो जा साडे को इत्थे आ गया 0 आ गया, या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो कंबाइंड स्टेटमेंट लिख दें, ये हुंदा डिवीजन एल्गोरिथम। यानी x नूं लिख सकते n क्यू प्लस r। सो यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्योंकि आपां काम किहदे च कर रहे हैं, इंटीजर च कर रहे हैं, तो नैचुरली डिवीजन एल्गोरिथम इहदे विच हुंदा। तो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, ये कौन होणगे, इंटीजर, सच दैट एक्स नूं असीं लिख सकते हैं एन क्यू प्लस आर, वेयर आर जिहड़ा है जा तो 0 होएगा, जा लैस दैन n ग्रेटर दैन 0 होएगा, ठीक है जी। इकट्ठे भी लिख सकते सी, पर मैं अलग अलग यूज़ कर लिया। आइदर r इज़ इक्वल टू दिस, और जे नॉन ज़ीरो तो r इस तरह का होएगा। तो असी r नू 0 बनाना ताकि x मल्टीपल ऑफ n बन जाए। तो असी कंट्राडिक्शन किहदे ते लगावांगे, दूजे केस ते कंट्राडिक्शन लगावांगे। सो कंसिडर कर लिया, लेट 0 लैस दैन r लैस दैन n, इहदे ते कंट्राडिक्शन लगाइए। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट r इज इक्वल टू x माइनस n क्यू, ठीक है जी। x बारे तो कोई डाउट नहीं है, आ जिहड़ा साडे कोल x है इट बिलोंग्स टू a, क्योंकि लिया ही a चों, और जिहड़ा n है वो भी a दे विच आ, क्योंकि आइडियल आ n इंटू r दा एलीमेंट जैन n इंटू z दा एलीमेंट वो भी a नू जाएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा n लिया वो किहदे विचों लिया, वो असी a दे विच हैगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो फस्ट मैंबर a नू बिलोंग कर गया, सैकेंड मैंबर a नू बिलोंग कर गया, और a की आइडियल आ, तो दोनों का डिफरेंस भी a नू बिलोंग कर गया। ਇਹਦਾ मतलब this belongs to A, this belongs to A, so which is contradiction because it disturb the minimality of n, क्योंकि असी की कह रहे हैं कि सब तो छोटा इंटीजर n है जिहड़ा A नू बिलोंग करदा, असी उस तो छोटा नंबर लभ लिया जिहड़ा A नू बिलोंग कर रहा। अगर इस तो छोटा नंबर लभ लिया जिहड़ा A नू बिलोंग करदा, then it disturb the minimality of n. If it disturb the minimality of n, it means this is not possible. तो साडे कोल आ पॉसिबल नहीं है। जे ए पॉसिबल नहीं है तो r दी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। जे r दी वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो x कितना का हो गया, n क्यू वर्गा हो गया। n क्यू की है मल्टीपल ऑफ n आ, तो जनरेटेड बाय n नू बिलोंग कर गया। ठीक है जी। तो असी a दे विचों कोई एलीमेंट लिया, वो कितना का हो गया, वो जनरेटेड बाय n नू बिलोंग कर गया। इट मीनस a इज सबसेट ऑफ जनरेटेड बाय n, सो इट मीनस a कितना का आ गया, साढ़े को जनरेटेड बाय n वर्गा आ गया, क्योंकि आ तो यदा सबसेट है ही है। अगर सबसेट है तो हरेक नॉन ज़ीरो आइडियल एदा प्रिंसिपल हो गया। अगर हरेक नॉन ज़ीरो आइडियल एदा प्रिंसिपल बन गया,
सो इट विल बिकम ए प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। तो साडे कोल ये प्रिंसीपल आइडियल डोमेन बन गया। ठीक है, तो याद रखना जिहड़ा सैट ऑफ इंटीजर है इट इज़ ए प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। ये साडे कोल PID है। तो अपने माइंड दे विच हुण आपां ये बिठा के रखना कि जदों भी Z नूं डील करना तो Z की है PID है। हुण असी सेम Z दे विच ही अगली एग्जाम्पल नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। इन Z वही साडे कोल सैट ऑफ इंटीजर और सानू पता प्रिंसीपल आइडियल। असी प्रूव की करना एन आइडियल जनरेटेड बाय n। So this is a maximal. This is a maximal if and only if. If and only if n is prime. If and only if n is prime. So इदा दे छोटे छोटे क्वेश्चन जिहड़े हुंदे आ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुंदे आ। लो जी, हुण आपां अगर देखिए असी की प्रूव करना, साडे कोल दो चीज़ां दित्तियां, एक मैक्सीमल दिता तो प्राइम प्रूव करना, दूजा प्राइम दिता तो असी मैक्सीमल प्रूव करना। सो फस्ट पार्ट दे विच असी मैक्सीमल लै लीए। पहला तो मैं इहदा नाम रख लिया I। सो दिस इज़ जनरेटेड बाय n। ठीक है, सो दिस इज़ ए मैक्सीमल आइडियल ऑफ Z आ गया। ठीक है जी, कंसिडर कर लिया। n नूं मैं प्राइम प्रूव करना। प्राइम मीनस इट इज़ नॉट ए कंपोजिट। तो असी इनू कंट्राडिक्शनल मैं करन जा रहा। सपोज n इज़ नॉट प्राइम। सपोज n इज़ नॉट प्राइम। मान लो n प्राइम नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब n कंपोजिट है। जे कंपोजिट है तो मैं इनू P इंटू Q फॉर्म च लिख सकदा। और P किदां दा होएगा 1 लैस दैन P लैस दैन n। दूजे पासे 1 लैस दैन Q लैस दैन n। सो n नू मैं PQ फॉर्म च लिख लिया। हुण बड़े ध्यान नाल देखो n की है मल्टीपल ऑफ P भी है, मल्टीपल ऑफ Q भी है। सो n बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय P। ठीक है, क्योंकि n की है मल्टीपल ऑफ P, सो इट बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय P। और जनरेटेड बाय P किदा आइडियल हो गया Z दा, क्योंकि मैक्सिमल क्योंकि PID है। सो दिस इज़ ऑफ दिस काइंड, उहदा हिस्सा हो गया। जे उहदा हिस्सा हो गया इट इम्प्लाइज दिस जनरेटेड बाय n विच इज़ पार्ट ऑफ जनरेटेड बाय P एंड विच इज़ पार्ट ऑफ Z। ये गल आ गई समझ? जे गल समझ आ गई तो जनरेटेड बाय n मैनू की दिता? मैक्सीमल दिता। जे मैक्सीमल आइडियल दिता जा तो आ दोनों बराबर होणगे ਜਾਂ आ दोनों बराबर होंगे, क्योंकि सिंस जनरेटेड बाय n इज़ मैक्सीमल, या तो वो दोनों बराबर होंगे या ये दोनों बराबर होंगे। सो पहले अकॉर्डिंग इट इम्प्लाइज जनरेटेड बाय n जनरेटेड बाय p होएगा, या जनरेटेड बाय p इक्वल टू Z दे बराबर होएगा। सो दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, दो केस बन जाएंगे। सो फस्ट केस अगर साडे कोल जनरेटेड बाय n जनरेटेड बाय p ये दोनों बराबर हो गए, तो याद रखना ये साडे कोल कौन आ मल्टीपल ऑफ n, ये मल्टीपल ऑफ p है। तो असी सब तो पहला थ्योरम कीती सी, अगर ये दोनों बराबर हों दैन n डिवाइड p एंड p डिवाइड n। ठीक है जी, एसोसीएट दे नाल रिलेटेड सी। सो वट इट इंप्लाइज
it implies P and N are equal. So which is not possible. So which is contradiction. Which is contradiction. Contradiction क्योंकि ਉਹਨੂੰ properly divide ਕਰ ਰਿਹਾ, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ contradiction ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਪਾर्ट। सो दूजे पार्ट च क्या है कि मेरे कोल Z जनरेटेड बाय P ਦੇ ਬਰਾਬਰ है। दिस आ गया। ਹੁਣ Z ਨੂੰ 1 ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। सो सिंस 1 belongs to Z, so it belongs to this values. So 1 belongs to Z, it implies 1 belongs to generated by P. So it means 1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P into R. R is some element, ਜਾਂ R ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ R dash ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। R dash belongs to Z। क्लीयर हो गया? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਜਿਹੜਾ ਹੈ it divides 1, ਜਦ ਕਿ P ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, which is again contradiction. So which is again contradiction क्योंकि P 1 ਨੂੰ divide नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि P ਜਿਹੜਾ है 1 ਤੋਂ बड़ा है, ਜਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ बड़ा है, सो इस करके ਉਹਨੂੰ डिवाइड नहीं कर सकता। सो इट इंप्लाइज जो असी ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ P ਸਾਡੇ N ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਕਸੀਮਲ ਹੈ तो दिस इज़ ए प्राइम नंबर। सो ये मेरा फस्ट पार्ट। हुण आपां गल करिए कन्वर्स दी। सो कन्वर्स दे विच सानू प्राइम नंबर दिता कन्वर्सली। सो लेट n इज़ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो असी प्रूव की करना कि जनरेटेड बाय n किदां दा होएगा? मैक्सीमल होएगा। सो साडा जो कम है आवर क्लेम दैट इज़ जनरेटेड बाय n इज़ मैक्सीमल आइडियल ऑफ Z। ठीक है जी, ये साडा काम। मैक्सीमल प्रूव करन लई एक नवा आइडियल लईए जिहड़ा इहदे तो बड़ा होवे। लेट J be ideal of Z such that this generated by n ये properly contain कर रहा J और A contain कर रहा Z दे विच। सो अगर मैं ये प्रूव कर देना J ते Z बराबर हैगे आ तो ये मैक्सीमल हो जाएगा। जे प्रूव कर देना तो जनरेटेड बाय n मैक्सीमल हो जाएगा। किसी भी आइडियल नू टोटल रिंग दे या टोटल इंटैग्रल डोमेन दे बराबर कदों कर सकते हैं? जदों 1 नू J दे विच बिलोंग करा दिए। सिंपल। अगर 1 J नू बिलोंग कर जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 1 यानी कि R भी J नू बिलोंग कर गया तो Z पूरे का पूरा J नू बिलोंग कर गया। सो इस चीज़ को आप ध्यान च रखना। नाउ फ्रॉम दिस पार्ट इन्ना हिस्सा देखिए क्योंकि प्रॉपर सबसैट आ तो कोई ना कोई एक ऐसा एलीमेंट होएगा J दे विच जिहड़ा उन्होंने बिलोंग नहीं करेगा। तो X बिलोंग्स टू J सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय N। ठीक है जी, क्योंकि वह प्रॉपर सबसैट आ तो J नू बिलोंग करेगा और दूजे नू बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि आप काम किहदे च कर रहे हैं? प्रिंसीपल आइडियल डोमेन च। तो हरेक आइडियल प्रिंसीपल होएगा। जे हरेक आइडियल प्रिंसीपल होएगा और X J नू बिलोंग कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब J किदां दा होएगा? बेसिकली J जिहड़ा है इट इज़ जनरेटेड बाय X होएगा।
ये क्यों होया? क्योंकि Z सानू प्रिंसीपल आइडियल डोमेन है ये बारे पता है, तो पता है तो प्रिंसीपल टाइप होएगा, तो जे दी इस तरह की साडे कोल डेफिनेशन बन गई। सो सिचुएशन की बन गई, सब तो छोटा जनरेटेड बाय n, ये प्रॉपरली कंटेन किया जनरेटेड बाय x, और a इक्वल भी हो सकता z दे नाल। ठीक है जी, सो ये मेरे को सिचुएशन जी आ यदी बन गई। हुण देखिए आप जनरेटेड बाय n साडे कोल दिस, सो इदा दोनों तो आपां की कनकलूड किया, इफ दिस इज सबसैट ऑफ दिस दैन x डिवाइड n। ये याद रखियो कि जदों आपां ये करीदा ना दिस इज सबसैट ऑफ दिस, तो राइट हैंड साइड लैफ्ट हैंड साइड नू डिवाइड करती है, और तुहानू n की दिता है प्राइम नंबर, n की दिता प्राइम नंबर, तो x n नू डिवाइड भी कर गया और n प्राइम नंबर आ, तो x दियां दो पॉसिबिलिटीज़ होंदियां, जा तो 1 दे बराबर होएगा तो जा इटसैल्फ दे बराबर होएगा n दे। ठीक है, x n दे बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों आइडियल बराबर नहीं है, तो x जेड़ा है वो n दे बराबर नहीं है। जे नहीं है तो x किदां दा हो जाएगा, x 1 दे बराबर हो जाएगा। जे 1 दे बराबर हो गया तो 1 जेड़ा है इट बिलोंग्स टू j, क्योंकि x j नूं ही बिलोंग करदा, तो 1 j नूं बिलोंग कर गया। जे j नूं बिलोंग कर गया तो j जेड़ा है वो टोटल z दे बराबर हो जाएगा। जे टोटल z दे बराबर हो गया तो जनरेटेड बाय n साडे कोल किदां दा हो गया, मैक्सिमल आइडियल बन गया। सो इट मीन्स जनरेटेड बाय n, सो दिस इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ z, z की सेट ऑफ इंटीजर। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साडे कोल एग्जाम दे विच कई बारी पूछया जाता है। इस तो अगली थ्योरम बिल्कुल इसे ढंग नाल ही आ, पर वो पॉलिनोमियल दी फॉर्म दे विच है। सो वट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम्स? सो स्टेटमेंट इज फॉर ए फील्ड, सो वट इज़ फील्ड? फॉर एनी फील्ड, एनी फील्ड f। ठीक है जी, असी फील्ड f ले ली, द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल वो ले लिया f ऑफ x, ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल बन गया। दिस इज ए PID, यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। मतलब समझते हैं कि यदा हरेक आइडियल प्रिंसिपल होएगा, याद रखना। ठीक है जी, सो अगर साडे कोल f फील्ड है और f ऑफ x की हो जाता रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, तो असी प्रूव करना कि ये जड़ा रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है इट इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सो जिद्दां असी Z दे विच कीता सी, Z नूं PID प्रूव करन लई उसे ढंग नाल असी इनू भी प्रूव करांगे। लो जी, प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। हुण f ऑफ x च कौन हुंदा? पॉलिनोमियल हुंदियां ओवर ए फील्ड f, ये सानू पता। तो प्रिंसिपल आइडियल लई असी कोई भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉन जीरो आइडियल लिया ऑफ f ऑफ x। ठीक है जी, सो नैचुरली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ
ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਲੈਟ ਜੀ ਬੀ ਏ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ of smallest degree such that G belongs to A। ठीक है, सो A ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ A ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, fx ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ G ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਰ ਕਲੇਮ A is generated by G, A is generated by G, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। तो ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣੇਗਾ, यानी A ਦੇ एलिमेंट मल्टीपल ऑफ G टाइप प्रूव कर दईए। सो लेट F बिलोंग्स टू A, तो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई कर दी। सो एक साडे कोल एलिमेंट लै लीए पॉलिनोमियल H एंड R इन F of X such that F is equal to GH plus R रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। सो साडे कोल डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करता, डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये कि आ पॉलिनोमियल F जिहड़ी है इनू असी G नाल डिवाइड किया, इत्थे आया रिमाइंडर, आया क्यूशेंट H, दिस वैल्यूज आर। ठीक है जी। सो आर पॉलिनोमियल नू F माइनस जी एच दे टाइप च मैं लिख सकता, ध्यान नाल समझिए। F बारे कोई कन्फ्यूजन नहीं, ए नू बिलोंग करता, तो F जिहड़ा है इट बिलोंग्स टू ए, एक चीज़। G भी ए नू बिलोंग करता क्योंकि ए आइडियल आ, तो जी एच क्योंकि एच एफ एक्स पॉलिनोमियल का हिस्सा आ, जी इंटू एच भी ए नू बिलोंग करेगा। सो आ भी ए नू बिलोंग कर गया, आ भी ए नू बिलोंग कर गया। ठीक। सो पहला मैं इत्थे पूरी कंडीशन लिख ला, वेयर आर एक्स जा तो जीरो होएगा जा डिग्री ऑफ आर एक्स लैस दैन डिग्री ऑफ जी, आर लिख लो, जी ऑफ एक्स की डिग्री तो घट होएगा। ठीक है जी। सो असी अजूम कर लीए आ दो पॉसिबिलिटीज़ आ, तो असी इनू अजूम कर लीए दूजी नू, इहदे ते कंट्राडिक्शन लगानी, तो एफ ए नू बिलोंग कर गया, आ भी ए नू कर गया, और दिस डिफरेंस बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए आइडियल है तो दोनों का डिफरेंस भी ए नू बिलोंग करेगा। सो विच इज़ कंट्राडिक्शन बिकॉज इट डिस्टर्ब द मिनिमैलिटी ऑफ डिग्री ऑफ जी एक्स। डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आया असी लई, इट इज़ लैस दैन डिग्री ऑफ जी एक्स, और असी कहने कि सब तो समोलेस्ट डिग्री वाली पॉलिनोमियल जी है जिहड़ी ए नू बिलोंग करदी, तो इत्थे की होया आर ए नू बिलोंग कर गई। सो विच डिस्टर्ब द मिनिमैलिटी ऑफ जी, इफ इट डिस्टर्ब द मिनिमैलिटी ऑफ जी, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल चीज़ क्या हो गई, आर एक्स जीरो के बराबर। जे जीरो के बराबर हो गया तो एफ किदां दा हो गया, जी एच टाइप। जे एफ जी एच टाइप हो गया, ठीक है, आर जीरो हो गया, एफ जी एच टाइप हो गया, then it implies F belongs to generated by G। it implies ਜਿਹੜਾ A आइडियल लिया सी वो ਇਹਦਾ पार्ट बन गया।
और ए तो ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। A is equal to जनरेटेड बाय G। तो प्रिंसिपल आइडियल बन गया। जे प्रिंसिपल आइडियल बन गया तो f of x रिंग ऑफ पॉलिनोमियल इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सो दूजा रिजल्ट याद रखना। पहला रिजल्ट सैट ऑफ इंटीजर कौन हुंदा? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। दूजा रिजल्ट अगर f फील्ड है तो ये उत्ते जिहड़ा रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी साडे कोल प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हुंदा।